آزاد کشمیر الیکشن کے دوسرے مرحلے میں بھی نون لیگ نے میدان مال لیا۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق 20 میں سے 14 نشستیں نون لیگ نے جیت لیں، 5 پر پیپلز پارٹی کامیاب۔ لیگی کارکنوں کا جشن، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے اور آتش بازی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی الیکشن میں کامیابی پر لیگی امیدواروں کو مبارکباد، کہا کامیابی مسلم لیگ نون کی پوری ٹیم کی محنت کا ثمر ہے، عوام کا مسلم لیگ نون کی پالیسیوں پر اعتماد کا ثبوت ہے۔ L27 مظفر آباد 1 پر ملتوی الیکشن کل ہوگا۔ L28 مظفر آباد 2 کے 54 پولنگ سٹیشنوں پر بھی ووٹنگ کل ہوگی۔ آزاد کشمیر الیکشن میں سادہ اکثریت حاصل کر لی، 23 نشستیں جیت کر حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئے۔ وزیر اعظم کی مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے مظفر آباد میں ایکشن کمیٹی کے ساتھ مل کر ہنگامہ کروایا، پولیس پر فائرنگ کروائی، خوف و ہراس پھیلایا، لطیف اکبر اور MNA پر قاتلانہ حملے کا ڈرامہ رچایا۔ قاتلانہ حملہ کبھی مکوں گالیوں سے بھی ہوتا ہے، ان سے دھاندلی کے ثبوت مانگے تو پیچھے ہٹ گئے۔ آزاد کشمیر الیکشن میں خون کی ہولی کھیلی گئی، انتخابی ضابطہ اخلاق کی کھلی خلاف ورزیاں کی جا رہی تھیں۔ رہنما پیپلز پارٹی سینیٹر شہری رحمان نے پروگرام باخبر سویرا میں گفتگو میں کہا الیکشن کے پورے عمل کا مذاق اڑایا گیا، صاف نظر آ رہا ہے ہم سے الیکشن چھینا گیا۔ الیکشن میں ہار اور جیت کوئی مسئلہ نہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کبھی الیکشن کا بائیکاٹ نہ کریں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کے بیان کے بعد نون لیگ کی اعلیٰ شخصیت کا پیپلز پارٹی قیادت سے رابطہ۔ ذرائع کے مطابق پی پی کی قیادت سے رابطہ 1 اگست کو نون لیگ کے بڑوں کی جاتی عمرہ میں بیٹھک کے بعد ہوا۔ پیپلز پارٹی سے معاملات کو فوری طور پر بہتر کرنے پر اتفاق ہوا۔ دونوں جماعتوں کی اعلیٰ شخصیات نے تلخی کم کرنے پر بات چیت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، امن و امان اور ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزیر اعظم سے ماڈل ٹاؤن میں گزشتہ شب ملاقات کی تھی۔ سیکریٹری داخلہ اجلاس میں کیوں نہیں آئے؟ ویسے بھی وزیر داخلہ نے کہہ دیا ہے سب کچھ تباہ ہو چکا۔ سیف اللہ ابرو کی سینٹ کمیٹی برائے داخلہ کی اجلاس میں گفتگو۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا محسن نقوی سے اوپر تو کوئی نہیں، جب انہوں نے کہہ دیا سب ختم تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ سیکریٹری داخلہ کو اجلاس میں شرکت کرنی چاہیے۔ جوائنٹ سیکریٹری کا کہنا تھا سیکریٹری تبدیل ہو چکے، ابھی نئے آ جائیں تو وہ بھی شرکت کریں گے۔ FBR حکام کی ٹیکس چھوٹ کے سرٹیفکیٹس کے اجرا کے طریقہ کار سے متعلق امور پر بریفنگ۔ سینیٹر سیف اللہ ابرو کا کہنا تھا فیکٹری مالک کھرب پتی بن گئے ہیں، حکومت غریب ہو گئی۔ نئی رپورٹ کے مطابق 3 ارب سے زائد کے سرٹیفکیٹ جاری ہوئے، اب تک 17 ارب کے ٹیکس چھوٹ سرٹیفکیٹ جاری ہو چکے ہیں۔ لاہور، راولپنڈی اور نواحی علاقوں میں بارش، چکلالہ، کچہری اور لیاقت آباد میں 50 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ ڈھوک کھبا میں نالے پر تجاوزات کے باعث سڑکوں پر پانی جمع، لوسر موڑ پر بارش کے پانی میں نہاتے ہوئے ڈوب کر 2 بھائی جاں بحق۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری، ایبٹ آباد اور مضافات میں بھی موسلادھار بارش، شاہراہ ریشم سمیت لنک روڈز پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ ایران کے ساتھ مذاکرات آج شروع ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے وہ لوگوں کو مارنا نہیں چاہتے، معاہدہ کرنا ترجیح ہے۔ آبنہ ہرمز پر معاہدہ طے پا گیا، ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے پر بھی معاہدہ ہوگا۔ ایران پر بڑے حملے کا منصوبہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور ایران کی درخواست پر منسوخ کیا۔ ایران پر حملہ ہوتا تو یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا حملہ ہوتا۔ ایران امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات کی تردید۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے امریکہ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ امریکہ عمان کے ساتھ آبنہ ہرمز پر مذاکرات کا حصہ نہیں ہے۔ عمان اور ایران آبنہ ہرمز سے متعلق نئے بحری راستے پر معاہدے کے قریب ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آبنہ ہرمز کھل جائے گا۔ امریکی صدر کی جانب سے ایران پر حملے روکنے کے اعلان پر بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں بڑی کمی۔
लंदन ब्रांड खाम तेल $4.76 कम होकर फी बैरल $83.16 पर आ गया। वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत में भी $5.21 की कमी, फी बैरल कीमत $79.45 पर आ गई। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान का ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची से टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते की सूरत हाल और कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। सऊदी वजीर खारजा ने अमन व इस्तेहकाम के क़याम के अज़्म का इआदा किया। सऊदी वजीर खारजा के कतर और उर्दन के वज़राए खारजा से भी राब्ते। तीनों ममालिक ने बुहरा अहमर में आज़ादाना जहाज़रानी की बहाली पर इत्तफाक किया। ईरान और तुर्की के वज़राए दिफा का भी टेलीफोनिक राब्ता। जंग बंदी, खत्ते की सूरत हाल, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। ईरान के क़ाइम मकाम वज़ीर दिफा ने कहा, तेहरान को वाशिंगटन पर एतमाद नहीं, किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में ईरानी मुसल्लह अफ़वाज जवाब देगी। मोहसिन नकवी साहब ने एक अच्छी और सच्ची बात की है। हम सब जानते हैं कि अवाम की इस वक्त क्या सूरत हाल है। गुज़श्ता 30, 35, 40 साल से जितना बड़ा शहर और जितना बड़ा सूबा है उस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन पूरी नहीं पड़ती है, तो कराची को अलहदा सूबा बना देना चाहिए। सूबे ज़्यादा बढ़ने से कि ना आवाम को सहूलत मिलेगी और लोगों के काम जल्दी होंगे। अगर आपने इंतजामी मामलात को दुरुस्त करना है तो मुल्क को छोटे इंतजामी यूनिटों में तकसीम करें। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के लोगों ने नए सूबों के क़याम की तजवीज़ की हिमायत कर दी। कहते हैं अगर मुल्क के इंतजामी मामलात ठीक करने हैं तो सूबे बनाना होंगे। 70 साल से एक ही निज़ाम चल रहा है जिसमें आवाम को कुछ नहीं मिल रहा। सूबे बनाएं, सिस्टम खुद ट्रैक पर आ जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 माह के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में अज़्म इस्तेहकाम वर्जन के तहत मुअस्सर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ, खवारिज के मुतादिद ठिकाने तबाह। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके खट्टी कली में मुतादिद खवारिज जहन्नुम वासिल, कई के जख्मी होने की इत्तला, असलहा, गोला बारूद और दीगर सामान बरामद। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कार्रवाइयों में मकामी आबादी के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा रहा है। स्वात के इलाके कबल में खुदकुश धमाके का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक कबल चौक में पासवन तंजीम का एहतजाज जारी था। इस दौरान थाना कबल के मेन गेट पर धमाका हो गया। वाक़या कालादम TTP कमांडर मुजफ्फर और दीगर दहशतगर्दों की कार्रवाई लगती है। खुदकुश हमलावर का सर मिल गया। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हमलावर अफगान है। धमाके में शहदा की तादाद 17 हो गई। शहीद 5 पुलिस अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में किसी का बाप भी गवर्नर आज नहीं लगा सकता। दोबारा दहशतगर्दी किसी सूरत कबूल नहीं। अमन हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मजीद सख्त पॉलिसी अपनाना होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की स्वात के दौरे पर गुफ्तगू। अस्पताल में जख्मियों की अयादत की। IG KP जुल्फ़िकार हमीद का कहना है स्वात धमाके के खुदकुश हमलावर की शनाख्त हो गई। दहशतगर्दों का पीछा कर रहे हैं, दोबारा मुनज़्ज़म नहीं होने देंगे। वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए JIT बनाएंगे। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा की मौत की तहकीकात। तफ्तीशी कमेटी का मकतूल के घर के बाद क्राइम सीन का दौरा। ARY न्यूज़ ने एक और CCTV हासिल कर ली। फुटेज में मीर रजा को ऑनलाइन टैक्सी में बैठते देखा जा सकता है। तफ्तीशी ज़राए का कहना है गाड़ी में बैठते हुए मीर रजा की कमर पर पिस्तौल लगा हुआ था। तफ्तीशी ज़राए का कहना है केस से जुड़े हर सबूत, हर वीडियो को हासिल किया जा रहा है। मीर रजा ने आखिरी मरतबा किससे बात की पता लगाने की कोशिश की जा रही है। मुमकिना तौर पर आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जारी हो जाएगी। ग्रुप कैप्टन शहीद आसिम तारिक कत्ल केस की समाअत। मुलजिम साद अब्बासी का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का मुलजिम को 7 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। प्रोसिक्यूशन ने तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए 20 रोज़ा जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा की थी।
पी टी आई रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल केस की तफ्तीश CCD को दे दी गई। ज़राए का कहना है गिरफ्तार शूटर्स ने इंकशाफ किया अब्दुल्ला ताहिर को मंसूबाबंदी से कत्ल किया गया। मरकजी शूटर अरसलान जट अपनी गाड़ी के जरिए शूटर्स को गुजरावाला से लाहौर लेकर आया था। अब्दुल्ला ताहिर को कत्ल करवाने वाला मुलजिम गोगी बट बैरून मुल्क फरार है। ईसा खेल में कार में दम घुटने के बायस 4 बच्चे जाँ बहक। बच्चे मालिक मकान की गाड़ी में बैठे तो दरवाजा ऑटो लॉक हो गया। बच्चों की उम्रें 4 से 7 साल के दरमियान है। वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। बच्चों में स्टेटनिंग के खात्मे के इक़दामात पर इत्तेफाक। मुराद अली शाह ने कहा तालीम और मुआशी तरक्की के लिए बच्चों में स्टेटनिंग का खात्मा नागुज़ीर है। बच्चों की नशोनुमा में बेहतरी के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम बनाएंगे। सेहत, ग़िज़ाइयत, सफाई और गुर्बत के मसाइल को एक साथ हल करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने पंजाब में जदीद ग्रीन इकोनॉमिक जोन कायम करने की तजवीज़ पेश की। वज़ीर आला पंजाब ने तजवीज़ पर एक्शन प्लान तलब कर लिया। मरीम नवाज का कहना था पंजाब सरमायाकारी के लिए तैयार है। हर सरमायाकार को खुशामदीद कहते हैं। पंजाब में नए कारोबार के लिए 0 टाइम टू स्टार्ट पॉलिसी नाफिज है। पंजाब को ग्रीन इंडस्ट्री और तिजारती सरगर्मियों का आलमी मरकज़ बनाएंगे। इसराइल के फ़लस्तीन में फ़ज़ाई हमलों में तेज़ी आ गई। मज़ीद 13 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। गुज़श्ता रोज़ भी इसराइली हमलों में 7 फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। गज़ा सिविल डिफेंस का कहना है शहीद होने वालों में 4 बच्चे और 2 ख़वातीन शामिल हैं। इसराइली ड्रोन्स और हेलीकॉप्टरों ने गज़ा सिटी, खान यूनिस और दियार अल बलाह में 10 से ज़ायद हमले किए। दियार अल बलाह में इसराइली हमले में हमास के कमांडर कमाल अबू मोयलक और उनकी अहलिया भी शहीद हो गए। मकबूजा कश्मीर के साबिक कठपुतली वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला कुलगाम में बेगुनाह मजदूरों की हलाकत पर मोदी हुकूमत के खिलाफ बोल उठे। फारूक अब्दुल्ला ने कुलगाम वाक़े का पाकिस्तान से ताल्लुक मुस्तरद कर दिया। कहा मोदी हुकूमत कश्मीर में दहशत गर्दी के जिम्मेदार है। अगर दहशत गर्दी खत्म हो चुकी तो मजदूरों को मारने वाले कौन हैं? बॉर्डर कंट्रोल में है तो कातिल कहाँ से आ रहे हैं? कश्मीर के खुसूसी तशख़्ख़ुस का मुतालबा सामने आते ही मशकूक वाक़या। जनूबी नेपाल में हिंदू इंतहा पसंदों के मुसलमानों पर हमले। मुतादिद शहरों और कस्बों में सूरत-ए-हाल शदीद कशीदा। इंतहा पसंद हिंदुओं ने मस्जिद के मीनार पर लगा लाउड स्पीकर उतार फेंका और इंतहा पसंद जमात का झंडा लगा दिया। मुसलमानों की झोंपड़ियों को आग लगा दी। सूरत-ए-हाल के पेश नज़र सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट कर दिया गया। मुतासरा इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। और हज़रत दाता गंजबख्श अली हजवेरी के उर्स का दूसरा रोज़ दुनिया भर से आए ज़ायरीन उर्स की तक़रीबात में शिरकत कर रहे हैं।